بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم گائز، تو اس ٹیوٹوریل میں ہم ڈسکس کریں گے ڈومین آف آئی ٹی کے بارے میں ان کمپیوٹنگ۔ تو آئی ٹی کے کور ایریاز کون کون سے اور اس کا اور فیوچر کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم جو ہے کمپیوٹنگ کی ڈومین وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو اب ہم جو ہے آئی ٹی کے ایریاز اور اس کے فیوچر وغیرہ کے بارے میں وہ ڈسکس کریں۔ تو اس سے پہلے والے ٹیوٹوریل میں ہم نے کریٹیوٹی، انوویشن، انالیٹیکل ابیلٹی اور لاجیکل تھنکنگ وغیرہ کیا ہوتی ہے آلریڈی دیکھ چکے تھے۔ اس سلائیڈ میں ہمارے پاس جو بچ گیا تھا وہ آئی ٹی کور ایریاز اینڈ فیوچر آف آئی ٹی تھا، جو کہ ہمارا جو لیکچر تھا، یعنی کہ لیکچر نمبر 12 اور 13 میں تھا، لیکن ہم اسی کے اندر اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے، اس کے بعد انوویشن وغیرہ کیا ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آج ہم آئی ٹی کے کور ایریاز وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو اس کو جسٹ ہم جو اس اوور ویو وغیرہ جانیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ان کے بارے میں ڈسکس، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی ٹی کے کون کون سے کور ایریاز کے، ان کے بیسک کے کون کون سے ایریاز ہیں آئی ٹی کے۔ تو سب سے پہلے ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ آف آئی ٹی کا ہے، دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی سپورٹ سروسز، اس کے بعد ایجوکیشنل ٹیکنالوجی سروسز آ جاتی ہے، اس کے بعد ریسرچ کمپیوٹنگ سروسز، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر سروسز، انٹرپرائز انفراسٹرکچر اینڈ سروسز، اور انفارمیشن سیکیورٹی، انفارمیشن سسٹم اینڈ ایپلیکیشن، اور اس کے علاوہ دوسرے آئی ٹی، یعنی کہ ان کے علاوہ جو آئی ٹی کے اندر ڈومینز ہیں وہ بھی ہم جو ہے ڈسکس کریں گے۔ تو ان کے بارے میں صرف آپ کو ہونا ہونی چاہیے، باقی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ڈسکس کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آئی ٹی آپ کو ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ آف آئی ٹی میں ہمارے پاس آئی ٹی کا سارے کا سارا جو ہے، یعنی کہ اس میں ساری ایڈمنسٹریشن وغیرہ، یعنی کہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ ساری اس میں انکلوڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسٹیٹیوشن آئی ٹی پلاننگ آ جاتی ہے، فائنینشیل پلاننگ آ جاتی ہے، ہیومن ریسورسز وغیرہ آ جاتے ہیں، پروفیشنل ڈیولپمنٹ فار آئی ٹی اسٹاف کے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اسپیس اینڈ فیسلٹی سروسز آ جاتی ہیں، ورک آرڈرز وغیرہ آ جاتے ہیں جو آئی ٹی کے حساب سے ہوتے ہیں، یعنی کہ ورک آرڈر کے اگر وہ آئی ٹی کے تھرو جو ہے وہ اس کو مینج کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کے سینٹرل ریسورسز ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ باقی مزید اس کو دیکھیں، اس کی یعنی کہ آئی ٹی کی پالیسیز ڈیولپمنٹ وغیرہ کیا ہے، ڈسیمینیشن کیا ہے، اپلیکیشنز وغیرہ آ جاتی ہیں، آئی ٹی کمیونیکیشن وغیرہ کیسے ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کو سینٹرل ریسورسز آتے ہیں، ریسورسز ڈیڈیکیٹڈ آ جاتے ہیں، اسٹاف ایولیشنز ہمارے پاس اس میں آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اینڈ سپلائز ایفیلیٹڈ ود دیز فنکشن وغیرہ، یعنی کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو کیسے مینیج وغیرہ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہمارے پاس انکلوڈ ہے۔ اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی، یعنی کہ سپورٹ سروسز میں کیا چیزیں، تو اس میں ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ، ہمارے پاس کمپیوٹنگ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر سپورٹنگ ڈیسک ٹاپ وغیرہ جو ہے یہ انکلوڈ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ جو ہمارے پاس اینٹی وائرس وغیرہ جو ڈیٹیکشن وغیرہ جو ساری کچھ کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایگزیکیوٹیو آئی ٹی سپورٹ آ جاتا ہے، یوزر سپورٹ سروسز آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپیشلائز سپورٹ سینٹرز وغیرہ آ جاتے ہیں، تو ریفرنس ڈیسک اینڈ اسٹاف آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اس میں سپورٹ فار ریزنیبل اکوموڈیشن آ جاتی ہیں۔ باقی کمپیوٹرز، یعنی کہ کمپیوٹرز یا سافٹ ویئر کی انسٹالیشن وغیرہ، مینٹیننس وغیرہ اور ریپیئر کیسے کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یعنی کہ کمپیوٹر اسٹور میں ہم نے کیسے جو سیل یا ری سیل وغیرہ کرنا ہوتا ہے، یہ انکلوڈ ڈپارٹمنٹل کمپیوٹنگ سپورٹ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آئی ٹی ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن انکلوڈ، یعنی کہ لوگوں کو کیسے کمپیوٹر وغیرہ کے بارے میں سکھانا، ملٹی میڈیا سروس، جیسے کہ ابھی آپ ملٹی میڈیا سروس، جیسے کہ ابھی آپ کو ایک جو آڈیو آواز بھی سن رہے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ سارا ملٹی میڈیا اس میں انکلوڈ آتا ہے۔ نان انسٹرکشن، نان کلاس روم آڈیو ویژول سپورٹ آتا ہے، ٹی وی پروڈکشن اینڈ براڈ کاسٹنگ آتی ہے، پرنٹڈ کاپیز سروسز، بزنس پروسیس سسٹم انالائسس آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی ریسرچ وغیرہ، مینجمنٹ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اسٹاف ایفیلیشن آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر تو ہر ایک میں ہی جو انکلوڈ، یعنی جتنے بھی ڈسکس چیزیں کر رہے ہیں یہ انکلوڈ ہوں گے ہی لازمی طور پر، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی سروس کے بارے میں۔ تو جو ہمارے پاس ایجوکیشن مطلب کہ تعلیم کے بارے میں جو ٹیکنالوجی سروسز پرووائڈ کیے رہے ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو انسٹرکشن
टेक्नोलॉजी सपोर्ट में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो हमारे पास आती हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट स्टाफ वगैरह आ जाती है। तो इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय फैकल्टी, यानी कि फैकल्टी को ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर स्टाफ आ जाता है। लर्निंग मैनेजमेंट आ जाती है। इसके अलावा लाइब्रेरी सिस्टम वगैरह आ जाती है। टेक्नोलॉजी सिस्टम टू सपोर्ट स्टूडेंट्स सक्सेस वगैरह आ जाती है। तो इसके अलावा हमारे पास क्लासरूम टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन वगैरह आती है। क्लासरूम एंड लर्निंग स्पेस सपोर्ट आ जाता है, इंक्लूडिंग ऑडियो विजुअल सपोर्टिंग, जैसे कि मल्टीमीडिया आपको आजकल मिलते हैं क्लासेस डिफरेंट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको मल्टीमीडिया वगैरह आजकल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। उसके बाद स्टूडेंट टेक्नोलॉजी सेंटर वगैरह, यानी कि लैब्स वगैरह भी आपने हर यूनिवर्सिटी वगैरह में स्कूल्स वगैरह में भी लैब देखी होंगी। तो ये सारी चीज़ें में इसमें ट्रेनिंग सपोर्ट वगैरह सब कुछ है। तो उसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों के लिए हमारे पास हम दे सकते हैं। इसके अलावा ई लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग वगैरह भी इसमें इंक्लूड होती है। ई लर्निंग जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आपको एग्जाम्पल, ऑनलाइन लर्निंग सब कुछ आप हासिल करें। यहाँ हाइब्रिड का मतलब होता है कि दोनों जो यूज़ की जाती हैं, तो दोनों भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी जो वो उनकी टीचिंग मैंने अभी आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन भी है, लेकिन इसके अलावा वैसे भी उनके जो आपको दफ्तर वगैरह जो है ऐसे मिल जाएंगे। इसके अलावा बिजनेस प्रोसेस सिस्टम हमारे पास आता है। टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, HR का मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह इसमें आ जाती हैं। स्टाफ एफिलिएटेड, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर वही चीज़ें हैं। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ इन सारी चीज़ों ने एफिलिएटेड होना होता है। उसके बाद रिसर्च कंप्यूटेशन सर्विसेज में रिसर्च स्टोरेज, और उसके अलावा रिसर्च मतलब आपने कोई भी चीज़ रिसर्च किया, जैसे कभी आपने ये ट्यूटोरियल वगैरह रिसर्च किया है, तो ये इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कंप्यूटिंग ही असल में आप IT की टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि फेसबुक जो यानी कि यूट्यूब वगैरह जो लैपटॉप वगैरह यूज़ करें, सारी IT की चीज़ें हैं। तो इसमें हमारे पास रिसर्च स्टोरेज एंड अचीव आ जाती है। इसके अलावा डाटा मैनेजमेंट एंड प्लानिंग सर्विस आ जाती है। इसके अलावा इसमें आ जाता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो इस हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग, हाई थ्रूपुट वगैरह जो है नेटवर्किंग का कंसेप्ट है, ये और डिटेल में ज़्यादा चलेगा, लेकिन सिर्फ आपको इनके बारे में पता है। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस रिसर्च वगैरह नेटवर्क में हो रही है, जैसे कि आजकल जो 4G का ज़माना चला, लेकिन आज इंटरनेट वगैरह का भी दौर आने वाला है, यानी कि 4G 5G 6G जैसे ये इस तरह हाई स्पीड वाले इंटरनेट भी आने वाले हैं। तो इन चीज़ों पर भी रिसर्च की जा रही है। तो इसके अलावा हमारे पास ग्रिड एंड डाटा सेंट्रिक रिपोर्टिंग और एडवांस विजुअलाइजेशन, इन सारी चूँकि रिसर्च वगैरह में इन सब पे अभी वर्क हो रहा है। अभी आपको ये देखने में बहुत कम चीज़ें मिलेंगी, आप इनको सर्च कर सकते हैं, और इन पे आप भी सर्च करना चाहिए तो कर सकते हैं। और अभी इन पर सब रिसर्च हो रही है, सब कुछ इसके बारे में देखा जा रहा है। तो आप भी गूगल वगैरह से कहीं भी इनके बारे में इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और इन पर बहुत सारी कंपनीज वगैरह जो वो रिसर्च कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है कंसल्टिंग आ जाती है। इसके अलावा रिसर्च टेक्नोलॉजी सर्विसेज फ्रॉम रिमोट साइड से, रिमोट साइड मतलब कि जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का आपने कंसेप्ट पढ़ा था। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या था, रिमोटली चीज़ों को एक्सेस किया जाता। तो रिमोटली चीज़ों को एक्सेस करने पे और मजीद जो है वर्क किया, जैसे कि आप चाहते हैं कि एक ही जगह पर बैठे आप मुख्तलिफ चीज़ों को एट अ टाइम जो है हासिल करें और कंप्यूटर के थ्रू ही सारी चीज़ों को हैंडल करें। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, इन पर वर्क मजीद किया जा रहा है। उसके अलावा बिजनेस प्रोसेस वगैरह आ जाता है, या टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिक टू दिस डोमेन एरिया आ जाता है। बाकी वही चीज़ें जो अभी है मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही चीज़ें, और स्टाफ एफिलिएटेड विद दीज फंक्शंस और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इसमें तो सारी चीज़ें बेसिकली, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा कोई और चीज़, इसलिए सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे मतलब कि हम जो आजकल जो कम्युनिकेशन वगैरह जो की जा रही है, ये सारी इसमें भी IT ही रिलेटेड है। जैसे कि कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से रब्ता कर रहे हैं, जो कॉल वगैरह कर रहे हैं, जो ऑडियो वीडियो सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो चीज़ें, यानी कि हम वायर के भी थ्रू भी कर रहे हैं और वायर केबल के थ्रू वगैरह भी कर रहे हैं, वायरलेस भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है। केबल के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो रही है। उसके अलावा आप जैसे कि मोबाइल फ़ोन वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो ये बगैर केबल का यूज़ किया, इंटरनेट केबल वाला इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि वाईफाई भी यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो यानी कि इसमें डाटा वाइस वीडियो नेटवर्क वगैरह की, उसके बाद कैंपस डाटा नेटवर्क, इसके अलावा वायरलेस आपको पता है वीडियो आता है, वो रिमोट एक्सेस VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको कहते हैं, कम्युनिटी इंटरनेट आ जाता है। इसका नेटवर्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कैपेसिटी प्लानिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, चेंज मैनेजमेंट सब कुछ इसमें इंक्लूड है। IPv6 पे अभी ये वर्क किया जा रहा है। IPv4 अब फिलहाल चल रहा है, लेकिन अभी तक IPv6 जो है अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, लेकिन इसका
इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन अभी तक ये इस पे यूज़ नहीं किया जा रहा। जैसे कि अभी आप अपना IP चेक करेंगे तो आपको IPv4 देगा, जैसे कि 192.168.1.1 कुछ भी आपको गिवन हो सकता है। तो इसलिए ये हमारे पास, अभी आपको एग्जांपल दी IPv4 के लिए, लेकिन IPv6 जो है ये थोड़ा लेंथ है और ये भी यूज़ नहीं है। उसके बाद यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन पे हो रही है, डायल ट्यून वगैरह इंक्लूडिंग सर्विस टू स्टूडेंट हाउसिंग वगैरह। इसके अलावा टेलीफोन सर्विसेज, वॉइस ओवर IP यानी वॉइस ओवर IP इंटरनेट के रिलेटेड ये हमारे पास आया था, जितनी भी कॉलिंग इंटरनेट के थ्रू की जाती हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल SIP, इसको SIP ट्रंकिंग कहते हैं, यानी कि अगर आप जितनी भी आप कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं ये सारा SIP एक किस्म प्रोटोकॉल है जो कॉलिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप ऑडियो वीडियो कॉलिंग पे वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप SIP प्रोटोकॉल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। इसके अलावा वॉइस मेल, आप जो बॉल वगैरह कर मैसेज एक दूसरे कहते हुआ सेलुलर एंड पेजिंग सर्विसेज आ जाती हैं। टेली कम्युनिकेशन, कंसल्टिंग, डिज़ाइन, वीडियो हमारे पास इसमें आ जाती है। सर्वेलेंस सिस्टम आता है, केबल TV वगैरह सब कुछ जो नेटवर्क फ़ोन के केबल TV सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम आता है, एमरजेंसी नोटिफिकेशन, ईमेल फैकल्टी स्टाफ स्टूडेंट्स। उसके अलावा कम्युनिकेशन वगैरह इसमें इंक्लूड कोलैबोरेशन वगैरह टेक्नोलॉजीज़ क्या जाती है। बिजनेस प्रोसेसेस वो बाकी वही चीज़ें यानी कि टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिक टू दिस डोमेन, यानी कि इसी एरिया के मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो इसके बाद इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा ये चीज़ें आपको जो इंटरप्राइज में सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली, बल्कि इन पर भी रिसर्च वगैरह हो रही है। वेब सपोर्ट, वेब सर्विसेज में इंक्लूड है, कंटेंट डिज़ाइन एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे कि अभी आप वेब वगैरह यूज़ करें, उसके बाद कंटेंट डिज़ाइन, इसमें सारी चीज़ें। तो इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी जो सर्विसेज हैं बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल के साथ किसी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को सर्च करें, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है इनमें से उस चीज़ पर जो आप रिसर्च करें, और उसके बारे में अगर आप किसी एक चीज़ के बारे में जानेंगे तो आपको कमेंट्स का मैं बहुत डिटेल के साथ बताऊँ, क्योंकि अगर इसमें हर एक चीज़ को मैं डिटेल के साथ बताने लगा तो इस पर तो घंटों लग जाएंगे, जो कि आपको कोई मकसद नहीं होगा। क्योंकि मेन फोकस हमारा जो इसके जो कोर हमारे पास रहती है, सिर्फ आपको इन चीज़ों के बारे में ओवरव्यू होना चाहिए। बाकी डिटेल के साथ हर एक के बारे में आप ज़्यादा से भी रिसर्च कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसमें आप हमारे कंटेंट मैनेजमेंट सपोर्ट आती है, वेब सर्विसेज सपोर्ट आती है, वेब सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन वगैरह डेवलपमेंट इंटरफेस, जैसे कि वेब सर्विस अभी आप यूज़ करें, जो भी यूज़ करें उसका DHCP एंड DNS डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और डोमेन नेम सिस्टम आया डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली IP एड्रेस DNS ऑटोमेटिकली IP एड्रेस वगैरह था। DNS मतलब कि जैसे कि आप google.com लिखते हैं, google.com को जो IP एड्रेस में कन्वर्ट करना और IP एड्रेस को google.com में वगैरह में कन्वर्ट करना, ये DNS का काम होता है। यानी कि IP एड्रेस को किसी नेम में कन्वर्ट करा और नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अब क्यों किया जाता है ये बहुत लंबी चौड़ी ज़्यादा चीज़ें क्यों किया जाता है मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर देखें google.com की जगह IP एड्रेस 192. कुछ 168. कुछ इस तरह का भी हम थोड़ी देर पहले बताया, तो इस तरह होता तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए। इसीलिए वहाँ उसको नेम में कन्वर्ट करके आपके मशीन जो है उन IP एड्रेस वगैरह को अंडरस्टैंड करती है। तो इसके अलावा पोर्टल डेवलपमेंट, जैसे कि आपके अटेंडेंस वगैरह पोर्टल वगैरह पर इन पर मजीद वर्क किया ये चीज़ें, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन और डेवलपमेंट, ये तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा बहुत रेयर चीज़ें जो इनके बारे में आप जानते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें भी इसमें आपको देखने को मिल होंगी। तो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशन आ जाती हैं। इसके अलावा इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज सिस्टम, बैकअप एंड रिकवरी सर्विस आ जाते हैं, सर्वर्स आ जाते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन इसमें इंक्लूडेड, डाटा सेंटर और ऑपरेशन आ जाते हैं। डाटा सेंटर इन्वायरमेंट सपोर्ट सिस्टम्स हमारे पास है, जैसे कि UPS बैकअप्स वगैरह, पावर सप्लाई, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। इसके अलावा जो आपको मजीद देखने को मिली डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, इंटरप्राइज एप्लीकेशन वगैरह इंक्लूड होती हैं। तो डाटा वेयर हाउसेज वगैरह का कैसे वर्किंग सब कुछ आ रहा है। मिडल वेयर डेवलपमेंट आ जाती है। इंटरप्राइज आर्किटेक्चर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आ जाता है। वेब सर्विसेज इनको कहा जाता है। ये डेवलपमेंट एंड सपोर्ट आती है, यानी कि
सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को सोया सर्विस भी कहते हैं। तो सोया सर्विस वगैरह इसके बारे में मैं ऑलरेडी इस पे ज़्यादा ट्यूटोरियल भी बना चुका हूँ। सोया सर्विस क्या होती है। उसके अलावा वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आस पास सास वगैरह के ऑलरेडी मैं इसके भी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ लहदा से। तो ये मेरे आस पास सास वगैरह इसमें इंक्लूड होता है। तो यानी कि इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सारा कुछ इनके बिजनेस प्रोसेस सिस्टम वगैरह आते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिक टू दिस डोमेन एरिया वगैरह, बाकी वही चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सारा इन सब चीज़ों का तलब है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी कि मालूमाती सिक्योरिटी, अथेंटिकेशन सर्विसेज इसमें इंक्लूड है। अथेंटिकेशन मतलब कि अथेंटिकेट करना कि आप वैलिड यूज़र है या अनवैलिड यूज़र है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग अकाउंट प्रोविजन एंड इसमें सारी चीज़ें अकाउंट के रिलेटेड कि कौन किसका अकाउंट है, कौन इस अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन इसका गेस्ट है, क्या चीज़ें जैसे कि आप लैपटॉप वगैरह में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑथोराइजेशन सर्विस कि इसको ऑथोराइज है किसको नहीं है, वो इसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं। यानी कि जिसको आप ऑथोराइज करेंगे, कोई नेम पासवर्ड वगैरह देंगे, वही जैसे कि आप फेसबुक वगैरह यूज़ कर, अदरवाइज आपकी फेसबुक वगैरह यूज़, आपका लैपटॉप वगैरह यूज़, जिसके पास आपका पासवर्ड वगैरह होगा वही यूज़ कर पाएगा, कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जिसके पास सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन है वही आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर यानी कि आपकी चीज़ को यूज़ कर पाएगा, इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर पाया। तो ये सारे डायरेक्टरी सर्विस आ जाती हैं हमारे पास। सिंगल साइन ऑन आ जाता है। इसके अलावा फेडरेटेड आइडेंटिटी आ जाती है। अगर इसमें सारी वो चीज़ें सिक्योरिटी के रिलेटेड जितनी भी आईटी में रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो सारी इंक्लूड हो सकती हैं। तो पासवर्ड मैनेजमेंट वगैरह, आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या आती है, सिक्योरिटी प्लानिंग डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसेस डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी कंसल्टिंग आ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स वगैरह है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस मतलब कि कहाँ सिस्टम में कमजोरी वगैरह, कहाँ सिस्टम हमारा जो कहाँ का हैक वगैरह किया जा सकता है सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हार्डवेयर वो सारी चीज़ें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन इसमें सारी इंक्लूड होती है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सपोर्ट आती है। इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन मतलब कि कहाँ फ्रॉड वगैरह किया गया, कहाँ से इलीगल एक्टिविटी वगैरह की गई, वो सारी चीज़ें। सिक्योर कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क पैरामीटर आ जाता है, डिटेक्शन आता है, नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस, नेटवर्क कैसे वर्क कर रहा है, क्या उनका बिहेवियर कैसे वर्किंग, सारा सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन आ जाता है। इसके डाटा लॉस प्रिवेंशन आ जाता है। सर्वर और सिस्टम लेवल एंटी वायरस डिटेक्शन एंड समथिंग, इसमें एंटी स्पैशिंग वगैरह सोल्यूशन वगैरह आ जाते हैं। सिक्योरिटी अवेयरनेस आ जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें वो इंक्लूड होती है। उसके बाद हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन में क्या चीज़ें। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन जैसे कि आपका आईएस वगैरह, जिनसे कि आपके पोर्टल पे नंबर वगैरह आपका लगाते टेनएस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन, लाइब्रेरी ऑनलाइन वगैरह सिस्टम होता है, तो वो भी आपका आईएस वगैरह यूज़र। तो ये भी असल में वही चीज़ें आ जाती है, तो वो भी एक आईटी के रिलेटेड है। तो उसी के बारे में आप उसके रिलेटेड भी डिस्कस की जा रही है। तो इंटरप्राइज डिसीजन सपोर्टिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, पे रोल यानी कि आपके जो पे रोल वगैरह का सिस्टम वगैरह सारा वो रिकॉर्ड आता है। फास्कर एंड प्रोसेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन इसके मैंने एप्लीकेशन सिस्टम वगैरह, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन सिस्टम। तो इसके अलावा ये हमारे पास मज़ीद इसके कुछ लाइव मैनेजमेंट वगैरह आ रही चीज़ें इंक्लूड्स हैं। तो ये चीज़ें आप सारी पढ़ सकते हैं। कोई ये आपको सिर्फ इनके बारे में पता होना चाहिए, बाकी आपको यानी कि अभी इनके बारे में डिटेल के कुछ जरूरत नहीं। जिस जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है, जो डोमेन के बारे जिस डोमेन को आपके बारे में डिस्कस करना है, उसके अलावा आप डिटेल के साथ वो पढ़ सकते। बाकी जब इस प्रोफेशनल प्रैक्टिस सिर्फ आपको इनके नेम वगैरह के बारे में पता नहीं, तो इसमें मोबाइल इंटरफेस वगैरह, ट्रेनिंग ऑफ यूजर सिस्टम है, प्रोग्रामिंग, सब कुछ ये आप सारी वो चीज़ें फिर इंक्लूड हो रही हैं। तो इनको आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर डोमेन की दूसरी डोमेन कौन सी है, आईटी में एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स वगैरह के रिलेटेड आ सकती है, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च वगैरह आ सकती है। इसके लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी है, मेड रूम वगैरह इसमें इंक्लूड है। उसके अब हमारे पास है फ्यूचर ऑफ आईटी, यानी कि आने वाले दौर में आईटी कैसे चला जा सके। आप गूगल यूट्यूब वगैरह पर सर्च 2017 में इस तरह की दुनिया होगी, इस तरह होगी। तो ये फ्यूचर ऑफ आईटी ही वगैरह 2050 में कितनी दुनिया तरक्की कर, कैसे रिपोर्टिंग वगैरह होंगी, सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड इसमें होंगी। तो ये हमारे पास फ्यूचर ऑफ
ऑफ आईटी में दो मेन चीज़ें आती हैं, यानी कि सिक्योरिटी का था, यानी कि सिक्योरिटी का बिग चैलेंज है फ्यूचर में। यानी हर एक बंदा चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी हो, तो सिक्योरिटी को एनहांस किया जा रहा है, दिन ब दिन सिक्योरिटी पे गौर किया जाता है, जितने भी नेटवर्क वगैरह है उनको मजीद जो है वो सिक्योर किया जाता है। तो इसमें सिक्योरिटी का चैलेंज आता है, तो सिक्योरिटी को बेहतर किया जाता है। बाकी दूसरी चीज़ आ जाती है मशीन्स वगैरह के बारे में। मशीन वगैरह में यानी कि जैसे कि आपको पेंटियम 4 वगैरह था, पेंटियम 3, पेंटियम 2 वगैरह, तो वो कितने ओल्ड सिस्टम हो चुके हैं, तो उनकी बजाय अब नए जैसे कि i3, i5, i7 वगैरह जो है ये आजकल जो चल रहे हैं आ रहे हैं, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इसके अलावा हमारे पास कभी भी, आप सोच रहे होंगे कि हार्डवेयर खत्म है, हार्डवेयर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो आज जो फ्यूचर ऑफ आईटी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर मज़ीद से बेहतर सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, यानी कि डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें हार्डवेयर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जैसे कि पहले थोड़ी सी यूज़ की थी, लेकिन आप HD कैमराज वगैरह से, तो उनके लिए कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए होती है, स्टोरेज वगैरह भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो साइज़ है वो भी कि हर चीज़ का हम ये क्या स्लिम स्मार्ट चीज़ें होनी, तो वो भी की जा रही हैं, और उसके साथ साथ कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है चीज़ों की, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो मेन दो इशू जो आ रहे हैं, वो एक तो ये है, सबसे मेन इशू है जो सिक्योरिटी बेहतर किया जाए, उसके अलावा जो मशीन वगैरह को बेहतर से बेहतर और स्लिम वगैरह जो है बनाया जा रहा है, तो ये इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये आप बाकी देख सकते हैं, कोई चीज़ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट, दो मेन टर्म जो आपको बताया। उसके बाद IoT, इसमें आया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट थिंग्स में क्या आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पूरा सब्जेक्ट है, और इसमें मैं पूरी डिटेल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है कि इस पूरे सब्जेक्ट के आउटलाइन के मुताबिक डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, यानी कि रोबोटिक वगैरह, जो मशीन लर्निंग जो काम हो रहा है आजकल, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेसिकली किया जा रहा है। तो डाटा साइंस वगैरह आता है, मशीन लर्निंग एक टाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसके अलावा इंडस्ट्री 4.0 आ रही, रोबोटिक प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन वगैरह। आजकल रोबोट वगैरह ऑटोमेशन सिस्टम, होम ऑटोमेशन सिस्टम, आपको बैठे बैठे जो रिमोट के थ्रू बल्ब को स्विच यानी कि स्विच ऑफ कर दे और सो जाए, इस तरह का आजकल सिस्टम चल रहा है। तो इंटरनेट मतलब कि एक जगह पर बैठे ही इंटरनेट के थ्रू, या वैसे ही आप सारी चीज़ों को एक लैपटॉप के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू एक जगह, मतलब कि आप एक जगह पर बैठे रहें और हर एक चीज़ को आप कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल करें, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाती हैं। तो ये हमारे पास इस तरह इसकी टेक्नोलॉजी जो है वर्क कर रही है। तो अगर मूव ऑन करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चलूँगा, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन में सारी, यानी कि फ्यूचर ऑफ के रिलेटेड बिलोंग जो करें, ये IoT टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे 1 बाय 1 जो हमारे पास डिटेल के साथ, ये एज एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट के तौर देख सकते हैं, एज अ 1 बाय 1 ये एक डोमेन चीज़ों को कह सकते हैं। अलग-अलग चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो इंटरनेट थिंग्स में आपको बताएं, यानी कि आप चाहते हैं कि एक ही जगह पर बैठे सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करें, यानी कि आप चाहते हैं कि एक ही जगह पर बैठे हैं, एक लैपटॉप के थ्रू ही आप जैसे कि बल्ब वगैरह के एग्जाम्पल, बल्ब को ऑफ कर दें। इसके अलावा आपका जो फ्रिज वगैरह चल रही है तो उसको ऑन ऑफ कर दें। इसकी बाकी जो डोर ओपन है तो उसको बंद कर दें। ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि एक जगह पर बैठ के सारी चीज़ें ये कर दें। तो ये इंटरनेट ऑफ उन थिंग्स, यानी कि अभी आप देख सकते हैं, आप अपना मोबाइल पर इंटरनेट यूज़ करें तो आपको ये ट्यूटोरियल वगैरह मिल रहे हैं। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज़ भी आप देखना चाहते हो इंटरनेट के थ्रू आप वो देख रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं कि एक जगह पर बैठ के सारी चीज़ों को कंट्रोल कर इंटरनेट थिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या थी, सारी चीज़ें ये इसमें वो आया, वही है, पूरा एक सब्जेक्ट है। पूरे सब्जेक्ट में ट्यूटोरियल इस पर लहदा आपको बता चुका हूँ, मैं बना चुका हूँ इस पर। तो आप इस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है सारा कुछ देखना चाहिए तो आप मेरे वो वाले ट्यूटोरियल देख सकते हैं। डाटा साइंस मतलब बहुत ज़्यादा डाटा जो आजकल यूज़ हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज किया, कैसे हैंडल किया जाता है, वो सारी, जैसे कि आप फेसबुक के एग्जाम्पल, वो कब से फेसबुक चल रही है, कितने बिलियंस लोग जो है फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डाटा वो कैसे स्टोर किया जाए और एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही हैं। तो ये डाटा नहीं, उसका मशीन लर्निंग मतलब कि जैसे इंसान काम वर्क करते हैं, जैसे इंसान जी रहा है उसी तरह मशीन को भी सिखाया जाए, सब कुछ कराया। तो ये हमारे पास मशीन लर्निंग मुख्तलिफ टाइप्स है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग क्या होती है। ये सारी चीज़ों ऑलरेडी इन पर मैं ट्यूटोरियल सारी चीज़ों को बना चुका हूँ। ये इन्हीं के अंडर वर्क सुपरवाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़े, या आप
मशीन लर्निंग पढ़े तो इन सब में आप सुपरवाइज अनसुपरवाइज या डाटा माइनिंग भी पढ़े तो ये सारी चीज़ें उसमें फिर भी आपको सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्स मशीन लर्निंग क्या है। तो ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़े, मशीन लर्निंग पढ़े या डाटा माइनिंग पढ़े तो सब में ये आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो इन पर ऑलरेडी मैं लाता से ट्यूटोरियल बनाया। उसके बाद रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन वगैरह सिस्टम आता है, यानी कि रोबोटिक वगैरह के सिस्टम में कैसे रिबोट वगैरह को आप जानते हैं रिबोट का। तो एक चीज़ इसमें इंक्लूड रिबोट और बोट में क्या फ़र्क, रिबोट आप हार्डवेयर वगैरह में जैसे कि आपने देखा होगा रियल तो रिबोट वो होता है, लेकिन बोट के बोट एक सॉफ्टवेयर होता है। बोट जो जैसे कि आप जो बोट मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक इंसान की तरह जो है चैट वगैरह जो करता है। आप पहले ऐसे जो जैसे कोई एक नई चीज़ आती है और इतनी पॉपुलर नहीं होती तो वहाँ रिबोट वगैरह को यूज़ किया जाता है कि वो चैट वगैरह करे। तो मैं सिंपल रिबोट जो होते हैं ये आपको तो पता है इसका कहने का, बोट एक सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का इसमें कंसेप्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि जैसे कि आजकल आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब वगैरह पर, कहीं भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त आप इंटरनेट के ऊपर जो सब कुछ आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि आप ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग आजकल सब कुछ जो वो की जा रही है। तो इसमें सारी चीज़ें हम मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह के मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू आप सब कुछ आजकल जो वर्किंग यानी कि इंटरनेट के थ्रू चीज़ों को सेल परचेज सब कुछ आजकल जो आपकी किए जा रहे हैं। तो ये सारे अमेजोन वगैरह के अगर आप इसमें एग्जांपल ले रहे हैं तो ये सारा डिजिटल मार्केटिंग में ही इंक्लूड हो रहा है। तो आजकल और मज़ीद बेहतर से बेहतर इसको जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास एंड नोट्स में क्या आता था, एंड नोट्स यही है कि जो हमारे पास आईटी के यानी कि फ्यूचर ऑफ आईटी का है तो ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये काम होने का नाम नहीं, ना ही ये काम हो सकता है दिन ब दिन ये क्योंकि हम खुद ज़रूरियात को आगे ले जा रहे हैं तो हमारी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही है, तो हम जो चाह रहे हैं वही होता जा। तो इसीलिए जो फ्यूचर ऑफ आईटी की वगैरह एंड नोट्स वगैरह देखा तो आज ये सिंपल ये वर्डिंग में देखा जाए तो फ्यूचर ऑफ आईटी यानी कि आईटी का फ्यूचर कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन इस पर वर्क किया जा रहा है। जितनी भी आपको डोमेन वगैरह एरियाज वगैरह सब में अभी इन पर रिसर्च वगैरह सब कुछ हो रही है। तो अगर आप समझते ये वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इनमें से किसी चीज़ के बारे में भी आपको डिटेल के साथ जाना तो इन पर घंटों के ट्यूटोरियल्स बन सकते हैं एक डोमेन के ऊपर। तो सिर्फ मैंने इस स्टोरी में आपको कौन कौन सी डोमेन्स है वो उनको एक शॉर्ट वे में बताने की कोशिश की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।